Okay, so this is the fifth building block class in which some further basic concepts need to be shared with you all. Now in the first class and the second class, we did some operations of time value of money on the calculator, correct? I also showed on the calculator the calculation of mean standard deviation, okay, although we have not covered that in QM. Then we went on to time value of money, DCF, short selling, then various types of yield, and then some derivative discussion, correct? So, you may write down the heading. The heading is perpetuity and perpetual cash flows. Sorry, perpetuity and perpetual growth. Perpetuity and perpetual growth. Now we use this word perpetual in English language only. Something is perpetual means what? Forever. Okay? So perpetuity means an annuity which is going to continue forever. And since it's going to continue forever, you cannot feed PMT on the calcina, because otherwise what will you feed N? N is infinity. N is what? Infinity, zindagi bhar. So there is a formula for calculating the present value of perpetuity. But we would better understand that via an example. So let's write down. Example. X Limited reported EPS. What is EPS? Earning per share, profit by number of shares. EPS of 40. X Limited reported EPS of 40 for the year just ended. For the year just ended. Full stop. It has a policy of 100% dividend payout ratio. It has a policy of 100% dividend payout ratio. Is this language clear? So what part of the earnings is it distributing as dividend? All. The entire earnings is what? Dividend. It is not retaining, it is not plowing back in business. Such a firm which is not retaining, not plowing back, can the firm grow? No. No growth. Full stop. So the firm is a no growth firm. The firm is a no growth firm where dash, next line, DPS. What is DPS? If EPS is earning per share, what is DPS? Dividend per share. Dividend per share. EPS, DPS equal to EPS equal to perpetuity. Equal to perpetuity. ठीक है? इसका मतलब 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 forever. ठीक है? The stock is presently trading at 312. शेयर मार्केट में इसका दाम 312 चल रहा है. Full stop. Similar stocks are providing a yield of 14% per annum. 14% per annum. Calculate intrinsic value of the stock. Calculate intrinsic value of the stock. And give your investment advice. Calculate intrinsic value of the stock and give your investment advice.
give your investment advice. ठीक है, तो जानबूझ के एग्जाम्पल से किया, आई डिड नॉट गो फॉर डेफिनेशन. तो इफ यू बाय द स्टॉक टुडे, what will you get after 1 year? 40. After 2 years, 40. After 3 years, 40, 40, 40, 40, 40 forever. Such a company which has no growth, uska share price is also not going to grow. So the only return that you're going to get is dividend, 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 dividend forever. Of course, you can sell it in between. But when we value a stock, we normally, if the horizon is not given, कि how many years are you going to hold the stock, it's always valued as if forever. It's a going concern. So accordingly, the price of the stock today should be the present value of 40, 40, 40, 40, 40 forever. The first 40 का present value is 40 divided by 1.12, 1.14 है क्या? I think 14 is okay with you. This is your required rate of return opportunity cost because you can earn 14% elsewhere. So the price of the stock should be first wala 40 divided by 1.14 plus second wala 40 divided by 1.14 square plus 40 by 1.14 cube and so on to infinity and so on to infinity. ठीक है ना? Let's write down solution. As per dividend discount model, as per dividend discount model, bracket DDM dash, next line, IV0. What was IV0? Intrinsic value today equal to PV, present value, of all future dividends. Of all future dividends. Discounted at RE. Discounted at required rate of return. तभी नाम क्या है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. तो डिविडेंड वर्ड इज ओके. डिस्काउंट माने क्या? प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू. तो डिस्काउंट द डिविडेंड्स. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द शेयर इज ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू, ऑल. ठीक है ना? सो IV0 इज इक्वल टू 40 divided by 1.14 plus 40 divided by 1.14 square plus 40 divided by 1.14 cube plus dash 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 to infinity. ठीक है? Now obviously since it's a CFA program, we teach it as per the style required in the program. Otherwise, this is a GP series. Have a look. The second term divided by first term. The second term divided by first term on the board. Just once again. Yeah, the second term, this term divided by the first term is 1 by 1.14. The third term divided by second term is also what? 1 by 1.14. तो इसका मतलब दिस अ कॉमन रेशियो. इट्स अ इनफाइनाइट जीपी. 11-12 में जनरली किया रहता है. द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज फर्स्ट टर्म ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर. याद है? ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर. आई कैन डू दैट एंड गेट एंड डिराइव द आंसर. बट वाई शुड वी डिविएट इनटू द टेक्निकलिटीज विच आर नॉट सपोज टू बी नोन दैट वे? आई कैन डू दैट बट टाइम वेस्टेज होगा. तो इंस्टेड इसका जो फॉर्मूला है, पहले उस आउटपुट को देखते हैं और उसके बाद जाके इंटरप्रेट करते हैं. फॉर्मूला इज A by I. व्हाट्स द फॉर्मूला? ये पूरे का टोटल इज 40 by 0.14. 40 डिवाइड बाय 0.14. दैट्स द आंसर. 40 by 0.14. नाउ 40 by 1.14 इज कमिंग टू व्हाट? 285.71. ओके, 285.71 आ रहा है कैल्सी में. 40 डिवाइड बाय 0.14, यू कैन चेक. 40 divided by 0.14 is 285.71. You're getting it? 40 divided by 0.14 is 285.71. तो इसका मतलब सर 285.71 को एज अ कॉमन पर्सन, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलिए ना, नॉट द मैथ्स. जीपीए नॉलेज मैथ्स. ठीक है? फाइनेंशियल मार्केट्स कम से कम फ्रॉम अ फ्रंट डेस्क क्लाइंट को फेस करते हुए एपीजीपी का बात थोड़ी करता है पोर्टफोलियो मैनेजर उसके साथ. वो तो रिजल्ट का बात करते हैं.
You should be able to speak out. तो 285.71 का मतलब ये है कि सर अगर तुम मेरे को 285.71 देते हैं आज और तुमको 14% रिटर्न चाहिए, तो व्हाट इज 14% ऑफ 285.71 कैलसी? 14% ऑफ 285.71 40 आया। तो तुम मेरे को 285.71 दो, 14% ऑफ दैट मैं तुमको 1 साल बाद दूंगा, इंटरेस्ट मिल गया। आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 285.71, बिकॉज 40 तो मिल गया आपको, तो लोन आउटस्टैंडिंग 285.71। वापस सेकेंड डे क्या चाहिए? 14% ऑफ 285.71 व्हाट इज इट? 40 दे दिए 40 तुमको, वापस आउटस्टैंडिंग क्या बचा? 285.71, वापस 14% क्या? 40, एकदम परफेक्ट है। If you want to earn 14%, then the price you should pay today is what? 285.71, isn't it? Because 14% of 285.71 is what? 40. अब उल्टा बोले तो, sir, I want 14% and you are going to give me 40. So 40 is 14%. I want 14%, you are going to give me 40. So 40 is 14%. So what is 100% equal to? 40 by 0.14. ठीक है, तो मेरे को 14% चाहिए, आप देने वाले क्या? 40, तो अच्छा 40 14% है, तो अगर 40 14% है तो पूरा क्या है? 40/0.14। ठीक है, तो इट कुड बी मोर इजीली एक्सप्लेन दैट वे, ऑल दो मैंने जीपी का हिंट दे दिए। ठीक है ना, लिख देना। वाया इनफाइनाइट जीपी सीरीज, वाया इनफाइनाइट जीपी सीरीज, वाया इनफाइनाइट जीपी सीरीज, वाया इनफाइनाइट जीपी सीरीज, कॉमा दिस कम्स टू 40 divided by 0.14. This comes to 40 divided by 0.14 equal to 285 point क्या? 71. ठीक है, 285.71. Next line. So henceforth, comma, present value of a perpetuity equal to A by I. Okay, the simplest formula in finance. Present value of perpetuity equal to A by I, अब से हमेशा। ठीक है, तो because perpetuity को define करना इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव कि perpetuity is an continue forever, वो डिफाइन करके सेंस नहीं है, इट्स द फील ऑफ इट। ठीक है ना, A by I, कोई कंफ्यूज नहीं हो। ए बाय आई से ए का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है कि ए सबका। अगर ए 1 साल बाद है उसका पीवी निकालना होता तो ए बाय 1 + आई करते। अगर ए 2 साल बाद है उसका पीवी निकालना होता तो ए बाय 1 + आई स्क्वायर करते। पर ये तो सारे के सारे ए का पीवी एक सिंगल फॉर्मूला में ए बाय आई। इज इट ओके? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, शेयर का दाम 285.71 होना चाहिए और है क्या? 300 ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड? ओवर प्राइस्ड, मतलब चीप और रिच। तो द स्टॉक शुड बी गॉन लॉन्ग और शॉर्ट। ओवर प्राइस्ड ऐसा गिरेगा शेयर, आपने को शॉर्ट कर देना चाहिए। तुम्हारे पास है शेयर तो बेच दो, नहीं है तो किसी से बोरो करके बेच दो। याद है क्या? किसी से शेयर बोरो करके बेचना इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग, you can borrow the stock from somebody, sell it right now at 312, wait for the price to fall to 285, then buy it at 285 and return the borrowing. ठीक है, तो you can make a profit. Short selling, borrow the share from somebody, sell it right now, later buy it from the market and return it back. Let's hope the price will go down. I said hope because it's speculation, na? Because all your thing 40 is a forecast. Is it guaranteed that the company will never grow? No, the company can grow. It's a forecast. The forecast can go wrong, we can lose our money. ठीक है? In fact, the company suppose becomes very solid, very good. So very good companies, solid companies, so people require lower rate of return. Because people require higher rate of return from somewhere where there is risk. So even the 14% can come down. 13, 12. Equity markets on the whole can go down. People require a lower rate of return. If it happens, 40 by 0.12 will what? Rise. I did 40 by 0.14. 12% अगर हो जाए ना कि बाजार में इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, अब अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% है, तो इन दैट के शेयर प्राइस विल व्हाट? राइज। वंस अगेन यू कैन लूज। तो शॉर्ट सेलिंग हो या स्टॉक बाइंग हो, दोनों में लॉस हो सकता है। इट इज स्पेक्यूलेशन। क्या? स्पेक्यूलेशन। याद है ना जो हमने वर्ड यूज़ किया था, जिगरा, कि आप कुछ ओपिनियन है उसके बेसिस पे बाई सेल कर रहे हो, बट आपका ओपिनियन रॉन्ग हो सकता है, यू कैन लूज योर मनी। ठीक है ना? ओके, लिख दो लास्ट में।
since actual price, that is P0, since actual price, that is P0, equal to 312 greater than IV0, P0 equal to 312 greater than IV0, comma, the stock is overpriced. The stock is overpriced. The stock is overpriced. And investors should go short. The stock is overpriced. And investors should go short. The stock is overpriced and investors should go short. Next example. ABC Limited. Next example, ABC Limited. ABC Limited is expected to report an EPS of 45 a year from now. A year from now, expected to report an EPS of 45 a year from now. Full stop. Investors' required rate of return. Investors' required rate of return. Investors' required rate of return is 15% per annum. 15% per annum. Full stop. Calculate intrinsic value of the share. Calculate intrinsic value of the share in the following two situations. Calculate intrinsic value of the share in the following two situations. In the following two situations. Dash. Para change situation 1. The firm has a 100% payout ratio and no growth. The firm has a 100% payout ratio and no growth. 100% payout ratio and no growth. तो इसका मतलब ये तो वही हो गया जो ऊपर किए कि सर 45 45 45 45 फॉरएवर. ये एमसीक्यू एग्जाम चल रहा है. व्हाट इज द आंसर? 45 बाय 0.15. ठीक है, तो लिखने से कुछ इज्जत नहीं बढ़ जाएगा उसका कि 45 बाय 0.15. तो इट हैज टू बी इंक्लूडेड ना. 45 फॉरएवर डिवाइड 0.15 आंसर, दैट्स इट. ठीक है ना. 45 बाय 0.15 क्या आ रहा है? हाँ, 300. 45 by 0.15 is what? 300. Because 300 का 15% is 45. Correct? तो इसका मतलब 300 होना चाहिए. Situation 2. Situation 2. The firm has a payout ratio of 80%. The firm has a payout ratio of 80%. And its perpetual growth rate. And its perpetual growth rate. तो इस बार भी perpetual word use किए, but किसके साथ? Growth rate. Its perpetual growth rate is 5% per annum. Is 5% per annum. 5% per annum. ठीक है? फिगर्स आपके सामने है. प्लीज सिचुएशन 2 में मेरे को कुछ बताना क्या नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितना होने वाला है? तुम्हारे पास है एकदम सामने फिगर्स है. प्लीज बताना नेक्स्ट ईयर डिविडेंड क्या होने वाला है? 45 का 80%. 45 का 80% कितना? 36. शैल आई कॉल इट D1? क्या D1 ना? एक चीज ध्यान रखना, जो पहले डिविडेंड हो चुका है, जो साल बीता उसके पहले वाला साल, उन सबसे कोई मतलब नहीं है. वी आर रेडी टू पे फॉर द शेयर टू एंजॉय द पास्ट और टू एंजॉय द फ्यूचर. पास्ट डिविडेंड्स आर नॉट रेलिवेंट. ऑफ कोर्स somebody who is forecasting, you understanding something? ये सिचुएशन 1 और 2 में मैं तुम लोग से फोरकास्ट नहीं करवा रहा हूँ.
मैं फोरकास्ट तुम लोग से शेयर कर रहा हूँ कि ये फोरकास्ट है, तुम लोग तो केवल मैथ्स करके बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो कि रियल लाइफ में कैलिबर क्या चीज़ में चाहिए, फोरकास्ट करने में। कोई भी कंपनी पकड़ते हैं, अब बताओ तुम उसका फ्यूचर में क्या होगा, समझा? और इजी पार्ट क्या है, सर आप बता दीजिए ना क्या होगा, बिकॉज हम लोग जब सम्स करते थे क्लास पे तो फोरकास्ट दिया था, हम लोग केवल टान देते थे। यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, कितना डिफरेंस है। तो CFA एग्जाम डज नॉट फोकस टू मच ऑन दिस थिंग। ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू करना, इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग द इंटेलेक्ट टू कम आउट विद द फोरकास्ट, ठीक है? तो एंड कमिंग आउट ऑफ द फोरकास्ट इज नॉट ओनली अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज, इट्स ऑल्सो अ सब्जेक्टिव जजमेंटल एक्सरसाइज, नोइंग अबाउट द कंपनी, द मैनेजमेंट, द इंडस्ट्री, द इकोनॉमी, एंड दैट इज वाई वी हैव इकोनॉमिक्स, वी हैव इक्विटी, वी हैव दिस एंड दैट, समझा? तो मेनी पीपल डोंट लुक एट इट हॉलिस्टिकली, सोचते हैं यार थोड़ा थ्योरेटिकल स्टफ क्यों है, केवल नंबर्स क्यों नहीं है, बिकॉज पूरा लाइफ नंबर से थोड़ी चल रहा है, ठीक है? नंबर्स आर डीपली रिस्पेक्टेड बट इंटेलेक्ट इज रिस्पेक्टेड मोर देन द नंबर्स, ठीक है? खैर कमिंग बैक टू इट, तुमने बोला 1 साल बाद डिविडेंड 36 होगा, करेक्ट। उसके 1 साल बाद का बताएगा? स्टूडेंट ने बोला 36 + 5%, एकदम करेक्ट है। ही सेड 36 इंटू 1.05, 36 इंटू 1.05 कितना है कैल्सी में? 36 इंटू 1.05 कैल्सी में कितना है? 37.80। नेक्स्ट ईयर इंटू 1.05 into 1.05, what is it? 39.6. You can keep on speaking that out, but somewhere you have to stop because you'll be exhausted. ठीक है? Because मैं बोल रहा हूँ forever. मैं बोल रहा हूँ forever. तो इसका मतलब 5% से ग्रो करता रहेगा सर। अगर अपने DCF मोड में जाए, CF मोड याद है कैल्सी का? जाना मत, जरूरत नहीं है। CF मोड क्या था? CF सेकेंड क्लियर वर्क, याद होगा? CF सेकेंड क्लियर वर्क नीचे, और उसके बाद C1, C2, C3 डालें, थक जाएगा तुम, बिकॉज तुम कहाँ तक डालेगा? C50, C100, C200, टाइम पास का चढ़ा है घर पे तो, ठीक है? उसके आगे तो कहीं रुकेगा, बिकॉज इट्स सपोज टू बी प्रेजेंट वैल्यू फॉर एवर, यानी कहीं ना कहीं मैथ्स का हेल्प चाहिए, ठीक है? यहाँ पे भी GP सीरीज है, यहाँ पे भी GP सीरीज बनेगा और उसका एक आउटपुट है, रिमेंबर। तो अपने को GP सीरीज में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जानना चाहिए हाँ GP सीरीज है, नो इश्यूज, डरते थोड़ी है, बट उसका आउटपुट पे स्ट्रेस देना चाहिए। आउटपुट सुनना क्या है? 36, ऊपर में 36, ऊपर में क्या? 36, और नीचे में I माइनस जी, क्या बोला? I माइनस जी। परपेचुअलिटी में हो रहा था A/I, क्या हो रहा था? A/I, और परपेचुअल ग्रोथ में A डिवाइड बाय नीचे में क्या? I माइनस जी। मतलब 1 मिनट कॉपी मत करना, द फॉर्मूला इज C1 डिवाइड बाय I माइनस जी, ठीक है? If we put G equal to 0 over there, what is the formula left on the board? C1 by I, which is perpetuity. If the growth rate is 0, you put a G equal to 0, C1 by I. But if the growth rate is there, the formula is C1 divided by what? I minus G. तो ये फॉर्मूला जो है, इसके पीछे इंट्यूशन चाहिए। जैसे वो जो फॉर्मूला था C1 by I, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्यूशन था। क्या इंट्यूशन? कि सर 40 रुपीज़ मिलने वाला है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो मैं तो केवल 40 ही कमाने वाला हूँ, और 40 14% होना चाहिए, बिकॉज मेरे को 14 चाहिए। तो 40 अगर 14% है, बताइए ना हम कितना पैसा दें? इट वॉज 40 by 0.14। फ्यू स्टूडेंट्स रिमेंबर इट टू दैट एक्सटेंट। A/I फॉर्मूला सब जानते हैं, बट देयर बी फ्यू स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक आउट कि सर A/I फॉर्मूला क्यों था, एंड आई डोंट नीड द GP, आई नीड द वोकल आंसर, ठीक है ना? अगर आप ध्यान रख पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? तो वैसे ही सर C1 by I minus G, ये जो आप आंसर बोल रहे हैं ना, एक बार आंसर निकाल लेते हैं अपने, लिखना मत, डू इट ऑन द कैलसी। 36 by 0.15 माइनस 0.05, क्या आंसर आ रहा है? 360। आंसर देखो 360 आ रहा है, बिकॉज नीचे में 0.1 है ना। 0.15 by 0.05 is what? 0.1, and 36 by 0.1 is what? 360. Don't write it, just wait, I'll dictate it, don't worry about the write up। 360, ये तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा सर, अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका सम आया तो करना तो बहुत इजी है। फर्स्ट कैश फ्लो लेना है, और नीचे में I माइनस जी, नीचे में क्या? I माइनस जी। फॉर्मूला इज इजी ना। अब इसको स्पीक आउट कैसे करें? इसको स्पीक आउट ऐसे करेंगे, सुनना प्लीज। इफ यू बाय द स्टॉक एट 360 टुडे, you buy the stock at 360 today, you get a dividend of 36 after 1 year. How much did you earn? 10%. You buy the stock at 360 today, you will get 36 dividend after 1 year. You get 10%. How much did you wanted to earn? 15%. ठीक है? तो don't worry, share price will go up by 5%.
What will go up? Share price will go up by 5%. 5% is growth, na? So share price will go up by 5%. So 5% share price will go up, capital gain, and क्या बोलते हैं 10% what? Dividend yield. 10% is what? Dividend yield. तो you're earning 15%. Perfect है. Price एक साल बाद बताना. 360 into 1.05. 360 into 1.05. एक मिनट. तो P0 is 360. एक बार. P0 360 चल रहा है. सर ये तो IV0 हुआ. क्या मैंने अलग से प्राइस लिखवाया है? नहीं ना. इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं जो प्राइस निकाल रहे हो वही शुड भी है, वही एक्चुअल है. जो आप निकाल रहे हो वही शुड भी है और वही इट्स करेक्टली प्राइस. कांट द शेयर भी करेक्टली प्राइस? इट इज. तो P0 360 है. आप अगर बाई करेंगे सर तो आपको एक साल बाद डिविडेंड मिलेगा 36, और सर जो प्राइस हो जाएगा एक साल बाद वो इससे 5% ज़्यादा. कितना? 378. तो अब अगर सम यहाँ से स्टार्ट हुआ होता ना, सपोज यू बाय अ शेयर एट 360 टुडे, सपोज यू बाय अ शेयर एट 360 टुडे, स्टोरी चेंज्ड. After 1 year, the share price will become 378 and you'll get a dividend of 36. What is your return? So if you calculate the return comes to what? 15%. 36 plus 378 minus 360 divide by 360 into what? 100. Dividend plus price change by initial price into 100. सही है? Could you just help me out? In the next year, what will happen? एक साल बाद खड़े सर दाम 378 है. उसके नेक्स्ट ईयर D2 क्या होगा? तुम लोग पहले बताया था 36 into 1.05. तो बोला तो था तुम 36 plus 5%. कितना हुआ? 37.8. And look, this is 10% of this, isn't it? 378 का 10% is what? 37.8. And the price will go up by 5%. Price will go up by 5%. How much? 396.9. And so on forever. So every year the investor is able to earn 15%. He's getting 10% by way of dividend yield. Dividend yield. Infosys announces a dividend rate of 350%. 350%. सुनने में बहुत भयंकर लग रहा है. 350% क्या बोल रहे हैं? ₹1 का. किसका? बिकॉज डिविडेंड रेट जो होता है वो फेस वैल्यू का होता है. किसका? फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू से क्या है? फेस वैल्यू तो ₹1 है. 350% ऑफ ₹1 वॉट? 3.5 रुपीज. डांस करे क्या? गेटिंग द डिविडेंड. ये डिविडेंड, ये जो 10% चल रहा था डिविडेंड रेट नहीं था, डिविडेंड यील्ड. डिविडेंड यील्ड. यील्ड इज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस. 37.8 by 378 is 10% D by P. एंड उसके अलावा एवरी ईयर देयर विल बी 5% ग्रोथ, मतलब शेयर प्राइस अप्रिसिएशन. तो मेरे घर पे 15% रिटर्न आएगा. That's one way of looking at it, because the non-math is that to earn 15% return, what should I pay today? That was your question. So as soon as you heard कि sir 5% growth है, look the point of view. So I want 15% from the stock. You are asking me what should I pay for the stock, and you are saying that the growth rate will be 5%. So out of 15, 5% is capital gain. 5% is, I'm assured. So I want the remaining 10%. I want the remaining 10%. From dividend. And what is going to be the dividend? 36. Is it going to grow? Yes, but forget about growth. Growth तो कैप्चर हो गया ना, जो 5 हटाए. मेरे को 15% चाहिए, उसमें से 5% कैपिटल गेन से ग्रोथ है, सब वो साइड हटा दीजिए. अब मानते हैं डिविडेंड 36 रहेगा जिंदगी भर, और तुमको 10% चाहिए. परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या है? A/I 36 by 0.1. व्हाट्स द आंसर? 360. तो वो नज़र चाहिए देखने का कि ये जो फॉर्मूला है D1 by I minus G, ये फॉर्मूला एक्चुअली A/I है, बट दिस इज I. लेट मी कॉल इट I star. द फॉर्मूला इज C1 by I star. C1 by I star is the required rate of return that you want as dividend yield. As required rate of return, of course you want 15%, but out of that 5% तो growth हो जाएगा ना. तो from dividend how much do you want? 10%. ठीक है तो. एंड सर व्हाई आर यू नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट डिविडेंड विल ग्रो? वी कांट. 5% तो अलग कर दिए ना भाई, वो तो अलग है. अब डिविडेंड को आप 36 मान लो, तो क्या चाहिए आपको? 360 देने दिया रो. द फॉर्मूला इज एक्चुअली A/I. ठीक है तो, कि मेरे को 10% हम देने तैयार है 36 के बदले, और 5% जो ग्रोथ है ठीक है कैपिटल गेन से, दैट्स ओके. ठीक है. तो फॉर्मूला इज C1 डिवाइड बाय व्हाट? I minus G. ठीक है. Any senior of you
of yours studying CA or CFA, L2, L3, whatever it is, most of them, if you tell them this formula, D1 divide by, लिखते हैं RE minus G, ऐसे लिखा जाता है, RE माने required rate of return. They will say that यार बहुत किया हुआ है. Anybody, this formula is very, very popular. It's done a lot in finance. They will say, but few would be able to argue कि reason क्या है उसका, मतलब कहाँ से आ रहा है. We try our level best. And देखो फिर वही होता है ना कि क्लास में और या कहीं पे भी a course is done by thousands of people, but some of them, 10, 15, 20, 30 of them, they are really doing it very passionately and they know in and out. ठीक है, तो वो difference create करता है फिर ultimately. तो D1 by RE minus G is a very popular formula. You will do 500 sums on it, याद हो जाएगा. But if you know the reason for it, sir, ये G क्यों हटा है, बोलना चाह रहे हैं G तो capital gains है, ऊपर डिविडेंड है, ऊपर तो कैपिटल गेन्स नहीं है, तो डिविडेंड जो है उससे आपको कितना चाहिए, RE चाहिए क्या, नहीं सर मेरे को RE माइनस G चाहिए, 15 में मेरे को 15 नहीं चाहिए डिविडेंड से, मेरे को 10% चाहिए, तो 36 36 36 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 36 बाय 0.1 360. इज इट ओके? ये है फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कैश फ्लो स्ट्रीम विच इज गोइंग टू ग्रो एट अ कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट फॉर एवर. ठीक है ना, C1 बाय I माइनस G. ठीक है, ओके, लेट्स राइट डाउन द आंसर. सॉल्यूशन. सिचुएशन 1, नो ग्रोथ, DDM. What was DDM? Dividend discount model. No growth DDM. I'm writing P0 equal to IV0. कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए, जो निकाल रहे वो प्राइस भी है, वो शुड भी प्राइस भी है. इक्वल टू व्हाट, A बाय I. तो इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 0.15. ये फर्स्ट आंसर था ना, 45 बाय 0.15 इक्वल टू व्हाट, 300. आई एम रेडी टू पे 300 सर, because 45 is the only thing I'll get. I will not get any capital gains. I want 15% from 45. ठीक है ना? Okay. Situation 2. Constant growth, DDM. Constant growth DDM. Constant growth DDM. इसमें P0 इक्वल टू IV0 इक्वल टू D1 डिवाइड बाय RE माइनस G. तो D1 इज 80% ऑफ 45. 80% ऑफ 45 बिकॉज 45 तो EPS था, डिवाइड बाय I इज व्हाट, 0.15 माइनस G इज व्हाट, 0.05. ठीक है, तो ऊपर में 36, नीचे में 0.1 इक्वल टू व्हाट, 360. एक्सप्लेनेशन. Explanation number 1. Explanation number 1. In situation 1, comma, there is no growth. There is no growth, which means the investor will get 15% in the form of dividend yield. The investor will get 15% in the form of dividend yield only. In the form of dividend yield only. पूरा 15% तेरे को dividend के form में ही मिलेगा. That means D1 by P0 is equal to 0.15. Okay, dividend yield is dividend by price. So dividend by price got to be 15%, 0.15. So price equal to what? D1 by 0.15 equal to 45 divided by 0.15 equal to what? 300. ठीक है? Explanation 2. In situation 2,
In situation 2, the investor, in situation 2, comma, the investor will enjoy perpetual growth of 5%, will enjoy perpetual growth of 5% in the form of capital gains, in the form of capital gains, in the form of capital gains, that is price appreciation, in the form of capital gains, that is price appreciation. Full stop. So, he requires so his required return will come from two components. So his required return will come from two components. So his required return will come from two components. That is dividend yield and capital gains yield, bracket represented by G. Dividend yield and capital gains yield, bracket represented by G. Dividend yield and capital gains yield, bracket represented by G. Next line, therefore, D1 by P0 plus G equal to 0.15. So last time था D1 by P0 15%, so D1 by P0 plus G equal to 0.15. Therefore, P0 equal to D1 divided by 0.15 minus G. That is P0 equal to 36 divided by 0.15 minus 0.05 equal to क्या? 360. ठीक है, 360. ठीक है, so remember कि for examination purpose in a classroom it is not sufficient to teach a concept, to give an intuition, to give a notes of it. It is required to devote time to spend on sums of it which could be diverted. But these building block classes में that angle is left out. Okay, we a lot of practice of the concept communicated. Communicate हुआ, that's it. अब जाके we are waiting that sir time value of money classes में फिर से ये आएगा तब और practice होगा. Understood? Short selling के ऊपर hardly 15 minutes spend किए. कोई derivative के ऊपर we spent around 40 minutes. That is not sufficient. ठीक है तो that all objective is going on to give you some background so that when it is talked about in class you are not like कि आता नहीं एकदम भी. Next, अब second topic जो कराना है वो है continuous compounding. Continuous compounding. Continuous compounding. Okay. Tell me something. I'm writing over here I. I'm writing over here M. And I'm asking the future value, which means I हो गया interest rate. ठीक है. Suppose 18%. M हो गया number of times compounded in a year. Number of times compounded in a year. 1. Slow down. 18% is the साल का interest rate. So it is compounded once a year. मतलब वो जो interest पे interest add होता है वो एक साल के अंदर नहीं हो रहा, साल के बाद ही होगा. तो what is the future value of 1 rupee after 1 year? 1.18. Correct. Silly question. वापस से 18%. Compounded 2 times a year, which we call compounded semi-annually. In that case, तो interest में interest 6 महीने बाद ऐड होगा. और एक मिनट आप लोग को ये भी याद है, when we say 18% per annum compounded 2 times a year, तो compound कर दिए या केवल state कर रहे हैं? State कर रहे हैं, किए नहीं है. तो 18 is not like effective. 18 is just stated. तो इसका मतलब, what is the future value of 1 rupee? Future value of 1 rupee after 1 year?
1.09 स्क्वायर, 1.09 यानी 1 प्लस 0.18/2 द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर। बाई चांस किसी को भी ट्रबल हुआ तो 9% आप 6 महीने में अर्न कर रहे हो, तो 1 रुपी आफ्टर 6 मंथ इज बिकमिंग 1.09, तो आफ्टर 1 ईयर इट्स बिकमिंग 1.09 स्क्वायर, और उस पर से 1 रुपी हटा दो तो आ गया ना इंटरेस्ट। ठीक है ना, थोड़ा सा मोनोटोनस लगेगा बट आई नीड टू डू इट। 18% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी इस बार हर 3 मंथ पे इंटरेस्ट, तो 18/4 इज व्हाट 4.5, 18/4 इज 4.5, तो 1 रुपी आफ्टर 1 क्वार्टर इज 1 प्लस, हाँ मैंने ठीक है, तुम लोग ठीक बोल रहे हो, 1.045 मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, आई डोंट यूजुअली राइट दिस बट आई एम डूइंग इट फॉर पर्पस। तो 1.045, तो आफ्टर 2 क्वार्टर्स 1.045 स्क्वायर, आफ्टर 3 quarters 1.045 क्यूब, आफ्टर 4 quarters 1.045 पावर 4, देन -1, तो आएगा मैंने सॉरी पावर 4, तो आगे 1 रुपी का फ्यूचर वैल्यू पावर 4। इफ 18% इज पर एनम कंपाउंडेड monthly, it will be 1 plus 0.18/12 to the power 12. If 18% is per annum compounded daily माने 365 times, हर दिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो इट्स 1 plus 0.18 डिवाइड बाय 365 टू द पावर 365। सही है, ठीक है। जो बोलना चाह रहा था उसके बजाय एक छोटा सा चीज़ मैकेनिकल पहले डाइवर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 plus 0.18 by 365 पावर 365, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। इसका वैल्यू कैल्सी में कैसे निकालते हैं, एक बार निकाल ही लो, बेटर रहेगा। इसका वैल्यू कैल्सी में निकालना लास्ट वाले का। डेसिमल प्लेस बढ़ा देना प्लीज, डेसिमल बढ़ा देना, मेक इट 6 डेसिमल। आई थिंक डेसिमल बढ़ाना आता है। सेकेंड फॉर्मेट 6 एंटर प्लीज। कैल्सी है तो जरूर करो। सेकेंड फॉर्मेट 6 एंटर CEC, उसके बाद 0.18 by 365, उसके बाद +1 जो आया y पावर x, फिर 365, फिर इक्वल टू 1.19, एक मिनट, 1.197164, ठीक है। इससे फीलिंग आ रहा है 19.7164% का। When you look at 1.197164, तो ये तो इंटरेस्ट थोड़ी है, तो 1 प्लस आ रहा है। द इंटरेस्ट इज 19.71%। कैन यू सी दैट ऑन द बोर्ड नाउ? पहला तो मैकेनिकली समबडी प्लीज शेयर विथ मी कि इसको इस तरह से गंदे तरह से जो आपने किए ना, 0.18 by 365 आया, +1 आया, फिर y पावर x, फिर 365, फिर इक्वल टू, दिस इज गंदा तरीका। इसको बेटर तरीके से कैसे करते हैं? इसको बेटर तरीके से कैसे करते? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर प्लीज? ठीक है, हिंट दे रहा हूं। इफ यू वांट टू शेयर देन TVM मोड से कर सकते हैं। कौन से मोड से? TVM मोड में क्या क्या डालते हैं? PV, FV, N, I/Y ना, उससे कर सकते हैं। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? PV, FV ये सब डाल के, यस प्लीज से। नो, रॉन्ग हो गया या करेक्ट है? तो शी सेड, लेट मी जस्ट रिपीट बिकॉज अदर्स विल बी वाचिंग दिस वीडियो। शी सेइंग दैट सर 1 इज PV, 1 रुपी को PV डाल दिए, करेक्ट है। एंड देन शी सेड इंटरेस्ट रेट को 18 by 365 बिकॉज द कैल्सी गॉट टू टेक द इंटरेस्ट रेट एज इफेक्टिव। तो सिंस यहाँ पे 1 डे इज 1 पीरियड ना, तो you got to feed the interest rate of 1 day, interest rate of 1 day, which is 18 by 365. That's I/Y. एकदम correct है then. N is 365, correct? Because N is number of periods, N is not number of years. N is not number of years. I is not interest rate for the year. It's all period concept. And then compute CPT FV. सही बात है ना? Try कर लो एक बार. Second clear TVM कर देना. Second clear TVM. उसके बाद 1 PV. 1 PV 18 by 365 I/Y 365 N CPT FV। माइनस में आएगा बिकॉज 1 रुपी पॉजिटिव डाले ना, तो माइनस को इग्नोर करो, क्या आ रहा है आंसर? 1.197164। डू यू ऑल एक्नॉलेज
that, do you all acknowledge that elegancy lies in doing it the PVFV way? And it's more elegant. Any normal person would be comfortable in doing PVFV rather than doing y power x and all that. ठीक है ना? खैर ये डाइवर्जन था, मैंने बोला बीच पे. मैं अपने मेन टॉपिक में आ जाऊँ. Just as I started with compounded annually, compounded semi-annually, compounded quarterly, compounded monthly, compounded daily, it could be compounded hourly, compounded every minute, every second, every millisecond. Why not? ठीक है तो? And then we come to the concept of continuous compounding. What? Continuous compounding मतलब compounded every moment, and every moment is not a second. ठीक है? It would be wrong and immature for people to think that second is a very, very small unit of time. There are something called algo programming. ठीक है तो? When the market runs, so there are softwares which execute trades buy sell, and they may execute millions of trade within a second. मतलब कितने सारे शेयर्स का बाइंग सेलिंग हो गया एक सेकेंड के अंदर. तो 1 second is too much. ठीक है तो? It is not too little. So I mean to say continuous compounding is something we have to live with if we want to study higher finance, which we have opted to. Continuous compounding. तो उस केस में if I write over here 18%, I should write what over here? I'm asking you. I wrote 1 over here, 2 over here, 4 times compounding, 12 times compounding, 365 times compounding. What should I write over here? Infinity times compounding. Infinity times compounding ना, infinity times ब्याज पे ब्याज. ठीक है ना? तो in that case यहाँ पे क्या आएगा? 1 plus 0.18 by infinity to the power and all that. ठीक है ना? तो ये जो हो रहा है इसको जनरल ये लिख सकते हैं कि 1 plus 0.18 by m to the power m. This is the future value of 1 rupee at an interest rate of 18% per annum compounded m times a year. This expression algebra is the future value of 1 rupee after 1 year at an interest rate of 18% per annum compounded m times a year. The limit of this expression as m tends to infinity. The limit of this expression limit. ठीक है? Many of you have done some calculus at +2. ठीक है? और heard the same. ठीक है? We have some limits and continuity ना. Calculus जो किया उसके तो था ही सबके. तो ये जो expression है, this is e power 0.18. What is it? E power 0.18. Okay? This is the limit. E power 0.18. What is it? Do not forget the base concept. It is the future value of 1 rupee after 1 year at the rate of 18% per annum compounded m times a year. ठीक है? Obviously we are not at all concerned with all these limits. ठीक है? I was not liking to share, but एक बार बताते समय GP हो या जो भी हो, वो फंडामेंटली मैथ्स का लिंक तो बताना जरूरी होता है if I am teaching nicely. ठीक है? तो in that case ये समझ में आया कि सर e to the power RC, RC माने continuously compounded rate, e to the power RC is equal to 1 plus RE. RE is the effective rate. RE is the effective. तो जब effective annual rate होता है ना, when the interest rate is, जो पहला क्वेश्चन था मेरा, interest rate is 18% per annum compounded annually. Compounded annually. तो आप 1 रुपये का future value क्या बोलते हो? 1.18. That's the right hand side over there. Right hand side 1.18 है. RE effective rate compounded once a year. But if 18% is compounded continuously, then the future value is e to the power 0.18. E to the power 0.18. Please search on the calci. There's a button for e power x. There's a button for ln and a button for e power x. E power x शायद yellow में लिखा हुआ है. Is it क्या? e power x left side में. किसके नीचे ऊपर थोड़ा help करना? नहीं ln नहीं, बटन कौन सा है ऊपर नीचे? STO के ऊपर. She's saying STO के ऊपर. दिखा आप लोग सबको अब तो STO के ऊपर ln लिखा हुआ शायद ln, और ln के ऊपर येलो में e पावर x है क्या? सही है? तो इन दैट केस आपको पता है जो भी येलो वाला है वो तो ऑपरेट सेकेंड के बाद होता है. तो अगर अपने को 0.18 ये वाला निकालना है, e to the power 0.18 अगर निकालना है तो निकालने के लिए 0.18 करो प्लीज. 0.18 सेकेंड e पावर x. 0.18 सेकेंड e पावर x आ गया होगा. क्या आया? 1.197217. जबकि जब कंपाउंडेड डेली किए थे तो आया था 1.197164.
और ऐसे आया है 1.1972, थोड़ा तो ज़्यादा आना ही था, बिकॉज हर दिन पे ब्याज वर्सेस हर मोमेंट पे ब्याज, डिफरेंस तो है ना। 1.197217 is the future value of 1 rupee at an interest rate of 18% per annum compounded what? Continuously. We are people specializing or supposed to specialize in applications. ठीक है, नॉट इन डेरिवेशंस। फर्स्ट टाइम कोई चीज़ को बता रहे हैं, स्लो करके बताना पड़ता है, वो अलग बात है, बट आगे से इट हैज़ टू बी एप्लीकेशन। समझाइए, थोड़ा सा मैकेनिकली बोलिए, यानी कि मैथ्स वाइज क्या करना है। करना ये है कि जो भी तुम फैक्टर यूज़ करते हो ना, 1+R तो हर जगह यूज़ कर रहे हैं अपने। जब से आज ग्रोथ रेट था 5%, तुम लोग बोल रहे थे 36 × 1.05, यानी 1+R तो एकदम बेस है पूरे के पूरे फाइनेंस का। व्हेन यू कंपाउंड यू यूज 1+R टू मल्टीप्लाई, व्हेन यू डिस्काउंट यू यूज 1+R टू डिवाइड। कांट यू फील दैट 1+R ये कितना बड़ा चीज है पूरे फाइनेंस में मैथ्स वाइज। वो 1+R इज नाउ रिप्लेस्ड बाय व्हाट? e⁻r। if interest rate is compounded what? Continuously, which means, listen, 5,000 deposited at 18% for 5 years, ठीक है ना। we have to find out the future value। पहला बार m equal to 1 यानी compounded annually, दूसरे बार m equal to infinity यानी compounded कंटिन्यूसली। सही है, क्वेश्चन समझ गए। 5,000 जमा करें बैंक में, सब 5 साल बाद क्या बनेगा? तो फर्स्ट वाला आंसर का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो, 5,000 into 1.18 to the power 5। You all could have more easily spoken it as compared to the frictions that you will show right now। उसमें होता कि अपना ब्रेन जब अट्यून्ड हो गया थोड़ा सा हायर लेवल सुनने में, तो बेसिक लेवल भूल जाते हो। वरना किसको ऐसा जन है जो क्लास ज्वाइन किया जिसको नहीं पता था 5,000 रुपये जमा करेंगे 18% से, तो 5 साल बाद कितना बन जाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट टीचेबल। 5,000 18% से 5 साल बाद क्या बन जाएगा? हु इज सपोज टू टीच दैट? 5,000 into 1.18 power 5। लेट्स कीप इट लाइट प्लीज, आई कांट टीच यू दिस, यू नो इट, इट्स इन योर सिस्टम। यहाँ पे जो है आप ये सीखे कि 5,000 into e⁻0.18, क्या e⁻, इसके बदले हुआ, और बाहर में क्या? 5। वो जो 1+R होता है उसके बदले क्या बोल रहे हैं? e⁻r। सिंपल, जहाँ भी 1+R यूज होता है उसके बदले क्या? e⁻r। बट देन यहाँ पे गिफ्ट आ गया अपने लिए, क्या? a⁻m ब्रैकेट n इज a⁻mn। बेसिक इंडिसेस पावर्स आर मल्टीप्लाइड, विच मीन्स दिस इज 5,000 into e⁻0.9। ठीक है, ये मैथ्स है। लेट मी स्पीक इट विदाउट द मैथ्स। If 18% is the continuously compounded rate for 1 year, if 18% is the continuously compounded rate for 1 year, the continuously compounded rate for 5 years is 90%। एक बार सुनते जाओ, 2 मिनट बोरिंग लगेगा पर सुनते जाओ। 18% 1 साल का कंटिन्यूस रेट है, 2 साल का 36, 6 महीने का 9, 3 महीने का 4.5, 1 महीने का 1.5, 3 साल का 36, तो सॉरी क्या बोलते हैं 54। तुमको लग रहा होगा कि सर तो कौन सा बड़ा बात बोल रहे हैं आप, कौन सा बड़ा बात बोल रहे हैं? तो आते बड़ा बात कब बोल रहे हैं? 18% इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कंपाउंडेड 6 महीने का 9, करेक्ट है। 3 महीने का नहीं है 4.5। 18% कंपाउंडेड सेमी एनुअली को 2 के अलावा कोई से दुनिया में डिवाइड नहीं कर सकता है। तुमने कर दिया तो गया सम। 18% अगर पर एनम है कंपाउंडेड व्हाट? सेमी एनुअली, यू कैन डिवाइड बाय 2 and 2 ओनली। समझ गया? 9% आ गया। अब तेरे को आना है अगर 3 महीने में 1.09 पावर हाफ, बिकॉज 1.09 हुआ 6 महीने का, सर क्वार्टर में 2 to 6 महीना होता है, पावर हाफ। समझ गया? आपको आना महीने में 1.09 पावर 1/6 पावर। क्या गंदगी चालू हो गया दिख रहा है इसमें। और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो 18% साल का है, महीने का बाई 12, 6 महीने का बाई 2, क्वार्टर का बाई 4, 5 साल का इंटू 5। ये जो स्मूथनेस है ना कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में, दुनिया में कोई रेट के साथ नहीं है। वी टेंड टू हेट इट शुरू में, यार क्या कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कॉम्प्लिकेटेड है, बट इससे ज़्यादा तो लव कोई आना ही नहीं चाहिए। यू कैन प्ले विथ इट लाइक एनीथिंग, नो अदर रेट के साथ यू कैन प्ले। इट्स एडिटिव, इट्स लीनियरली रिलेटेड, लीनियर हायर स्टैटिस्टिक्स पे। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट।
हायर स्टैटिस्टिक्स में, हायर स्टैटिस्टिक्स में जो फाइनेंस में होगा, उसमें क्या होगा ना, अपने को फोरकास्टिंग करना है. समथिंग विच इज लीनियर स्ट्रेट लाइन इज अमेनेबल टू इजी स्टैटिस्टिक्स. समथिंग विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका मैथ्स गंदा हो जाता है. तो मतलब द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इज दैट हायर स्टडीज में इट्स वेरी इजीली यूज्ड बिकॉज इट्स लीनियर. Okay, 18% is the continuous rate. Look, listen to, I'm just coming to you. 1 minute. A bank, you went to deposit money in a bank. Listen to the story. You went to deposit money in a bank for 2 years. 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं. The bank said, I'll give you 18% for the first year effective. And I'll give you 15% for the second year. 18 for the first year, 15% for the second year. What will be, दोनों effective है. Continuous को भूल जाओ. What will be your future value of 1 rupee after 2 years? आप लोग को पता है, प्लीज. 1 रुपया जमा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर 18% है, सेकेंड ईयर 15% है, तो 1 रुपया कितना बन जाएगा 2 साल बाद, आपको पता है, प्लीज स्पीक आउट. 1.18 इंटू 1.15. 1 रुपी बन गया 1.18, फिर इंटू 1.15. ठीक है ना. विच मीन्स अगर मैं 2 साल का इफेक्टिव रेट पूछूं तो 1.18 इंटू 1.15 माइनस 1, ऐसे आया ना. जबकि अगर बैंक बोलता कंटिन्यूअस रेट फर्स्ट ईयर का 18, सेकेंड ईयर का 15, 2 साल का 18 + 15, 18 + 15, मजा दिख रहा है इसमें. प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो मन. कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इज अ वेरी वेरी गुड रेट. मतलब मेरे को बोलना पड़ता है ऐसे, बिकॉज यू आर सीमिंग टू फर्स्ट टाइम नॉट लाइक इट. आई विल हैव टू जनरेट दैट लाइकलीनेस ना. किसको तो एकदम पीछे पड़ जाओ इसके, तो ये काश कंटिन्यूअस रहे. ठीक है. तो कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट इज ऑफ दैट टाइप, एंड उसका इम्प्लीकेशन यहाँ से पता चला बिकॉज पावर्स आर एडेड ना इंडिसेस में. आज मेरे को अगर करना है ऐसे, देखना एक बार, 1 रुपी का फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज e⁻0.18 है. तो कंटिन्यूअस में 1 रुपी का फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स इंटू e⁻0.15. अब पावर्स क्या होते हैं, ऐड, इसलिए बच रहा है. पावर्स ऐड हो जाता है ना यहाँ पे, तो 0.18 + 0.15, तो इट बिकम्स एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव. जबकि उस पर क्या होता है 1.18 इंटू क्या 1.15. दिस इज नॉट गुड मैथ्स हायर स्टैटिस्टिक्स के लिए. सो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इज समथिंग वी हैव टू लिव विथ. टू मच इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. इज इट ओके. अब एक बार रुक रहा हूँ बिकॉज समबडी वाज आस्किंग अ डाउट. यस, compounded semi-annually. This question is, rate is 18% per annum, compounded semi-annually. Yes. तो हाँ, ई में नहीं बैठाएंगे ना, क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा. अभी तुम्हारा जो, अगर ई भूल जाते, बाकी जो क्वेश्चन बोला उसका, ये बोला 18% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है सर, और बोला 3 महीने का निकालो. इनफॉर्मल लैंग्वेज था 3 महीने का निकालो, तो मैं यही समझा ये बोलना चाह रहा है 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो. इसका लैंग्वेज है 18% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है. फिर सपोज सा बोला 3 महीने का निकालो, ही वॉज इनफॉर्मल टुवर्ड्स द एंड. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ही इज आस्किंग 3 महीने का रेट. तो इन दैट केस 18/2 इक्वल टू व्हाट 9. तो 1.09 is the future value of 1 rupee after 6 months. But in 6 months there are 2 3 months. There are 2 3 months. So therefore to the power what, half. And if you do -1, you get the interest rate for 3 months, which is 4.5 से कम. 4.5 से अरे 4.49 कुछ आएगा. 4.5 से कम, बिकॉज 4.5 अगर 3 महीने का है तब तो ब्याज पे ब्याज लेके 6 महीने का 9 है कि 9 से ज़्यादा. 9 से ज़्यादा. यू कैन फील इट. अगर 4.5 3 महीने का है तब तो ब्याज पे ब्याज लेके 9 से ज़्यादा है ना. 4.5 से जरा सा कम है तो ब्याज पे ब्याज लेके 9 है ना, बिकॉज दैट गॉट टू कम. ठीक है. तुम जो पूछना चाह रहा था वो क्लियर नहीं किया. तुम 3 महीने का क्या बोलना चाह रहे? द पॉइंट इज व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट, दैट्स द पॉइंट. तो यू आर नॉट कमिंग टू द स्टोरी. मतलब स्टोरी जो होता है ना कि सर समझ लीजिए हम लोग पैसा जमा किए और ऐसा ऐसा है, उस पर नहीं आ रहे तुम, बिकॉज ऑफ विच मैं बता नहीं पा रहा हूँ. और शायद जो तुम पूछना चाह रहे हैं वो 2 मिनट बाद क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो जस्ट वेट अ बिट. ठीक है. बिकॉज आई हैवंट टॉट यू कन्वर्जन. कंटिन्यूअस को इफेक्टिव कैसे करेंगे, इफेक्टिव को कंटिन्यूअस कैसे करेंगे, मैंने वो सब नहीं बोला है. मैंने तो केवल ये बोला जब भी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है क्या यूज करोगे, e⁻i. दैट वाज माय फर्स्ट स्टेटमेंट. माय सेकंड स्टेटमेंट वाज दैट कंटिन्यूअस रेट इज इजी टू प्ले विथ. इजी टू प्ले विथ. यू हैव 1 ईयर का, यू कैन फाइंड आउट 6 मंथ का, 3 मंथ का, 12 मंथ का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, इनटू डिवाइड. दैट्स द 2 थिंग आई हैव कम्युनिकेटेड. कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग रेट जो है जब भी रहेगा e⁻r यूज़ करो. वो लिमिट के फॉर्मूला से आ रहा है, अपने को मतलब ही नहीं है उससे. और दूसरा,
अगर वो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग रेट दिया हुआ है साल का और 6 महीने का पूछा या 2 साल का पूछा, बहुत ईजी है, डिवाइड बाई 2 इंटू 4 डिवाइड, दीज आर द 2 थिंग्स आई हैव कम्युनिकेटेड, इज इट ओके? ठीक है, तो लिखो प्लीज, उसके आगे और बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, we know that if effective rate is RE, okay, मैंने RE लिखा है, छोटा r, if effective rate is RE, comma, the interest rate factor is 1 plus RE, is 1 plus RE, ठीक है? तो आई होप रीडिंग करते समझते रहोगे। सब बोला चाह रहे थे 18% है कंपाउंडेड एनुअली, तो 1.18 होता है, तो यानी कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है ना? फिर नंबर 2, इफ continuously compounded rate is RC, if continuously compounded rate is RC, comma, the interest rate factor is e power RC, the interest rate factor is e power RC, पॉइंट नंबर 3, यहां पे पहले आप कन्वर्जन सिखा दें। दिस मीन्स e पावर RC is equal to 1 plus RE, e power RC is equal to 1 plus RE, ये दोनों बराबर है ना? ये भी फैक्टर, यही फैक्टर है, तो इन दैट केस RC इक्वल टू log of 1 plus RE to the base E, RC इक्वल टू log 1 plus RE to the base E। तो जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है +2 में, दे विल अंडरस्टैंड दिस इज ऑब्वियस बेसिक लॉगरिथम है। और बाई चांस किसी का मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन द CFA करिकुलम, ठीक है? द बेस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैव नॉट बीन द बेस्ट इन मैथमेटिक्स, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना? 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, so log 100 to the base 10 is equal to what? 2. 10 square is equal to 100, so log 100 to the base 10 is equal to 2. That is the definition of log, ठीक है? तो वही किया मैंने, देखो लेफ्ट और राइट एक ही चीज है, ठीक है? तो खैर, जो log to the base e होता है, फिर से RC इक्वल टू ln 1 plus RE, log to the base e is natural log, which natural log, it's denoted by ln, ln माने log to the base e, you must be copying please, हाँ, ये डिक्टेशन चल रहा है, ln 1 plus RE, ln 1 plus RE, इसलिए कैलकुलेटर में ln का बटन दिया हुआ था और उसके ऊपर ही e पावर x था, बिकॉज दोनों रिलेटेड है ना, इन्वर्स फंक्शन है, समझ गए? इन्वर्स फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ y, इन्वर्स फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स आर इन्वर्स फंक्शन। इससे ये पता चला, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि सुनना ठीक से, अगर कोई सम में अपने पास इफेक्टिव रेट है, कौन सा रेट है? इफेक्टिव, और अगर आपको कंटिन्यूस रेट निकालना है, हम लोग उस इफेक्टिव रेट का फैक्टर बना के उसका ln लेंगे। अगर इफेक्टिव रेट दिया हुआ है, ठीक है, तो 18% इफेक्टिव रेट है, फैक्टर क्या हुआ? 1.18, डो नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ, फैक्टर को इजीली बोलो, 18% इफेक्टिव रेट है, फैक्टर क्या? 1.18, उसका ln कैल्सी प्लीज, 1.18 ln, 1.18 ln इंटू 100 कर दो, 16.55, 16.55, नाउ यूज योर स्ट्रेंथ नाउ, किसा ये तो मैथ्स हो गया, तो अब अपना एरिया यूज करो ना। 16.55% अगर कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है, 16.55% अगर कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है ब्याज पे ब्याज, तो आपका 1 रुपया 1 साल बाद 1.1655 नहीं बनेगा, क्या बनेगा? 1.18। समझ गया? 16.55%, एक मिनट, 16.55% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, ये स्टेटेड है कि इफेक्टिव है? स्टेटेड,
हम लोग बोल रहे हैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करना बाकी है, तो स्टेट कर रहे हैं, और जब तुम कर देगा तो क्या इंटरेस्ट 16.55, क्या 16.55 है कि उससे ज़्यादा है? ज़्यादा। वो क्या है? 18। तो 18% अगर इफेक्टिव रेट है, उसका कंटिन्यूस रेट 16.55 है। तो पहला मिस्टेक स्टूडेंट जब सोचता है, मैं पूछूँ कंटिन्यूस रेट ज़्यादा होता है कि इफेक्टिव रेट ज़्यादा होता है, तो जवाब आता है कंटिन्यूस रेट। तुम गलत बोल रहे हैं। तुमको बोलने का मन क्या हो रहा है बता रहा हूँ। कंटिन्यूस रेट का इफेक्ट ज़्यादा होता है कि इफेक्टिव रेट का इफेक्ट ज़्यादा होता है? किसका? कंटिन्यूस रेट। तुम ये बोलना चाह रहे हैं। पर अगर हम लोग का इफेक्ट सेम रखना है, मेरे को 1.18 ही लाना है 1 साल बाद, ठीक है, तो जो दोनों रेट है कंटिन्यूस और इफेक्टिव, जो 1.18 लाएगा, तो जाहिर है कंटिन्यूस रेट तो कम हो के भी 18 का काम कर देगा ना। कंटिन्यूस रेट तो कम हो के भी 18 का काम कर देगा। तो सब वो कैसे पता करेंगे? ln 1.18। क्या? ln 1.18, ठीक है। तो 1.18 का ln gives you 16 point something. That's the continuous equivalent of the effective rate of what? 18. Is it okay? ठीक है, okay. Para change. Hence, the conversion formulas are. Hence, the conversion formulas are. The conversion formulas are. लिख लो RC और RE। अगर RC को RE करना है, मतलब RC दिया हुआ है 16 पॉइंट क्या 55, और उसका इक्विवेलेंट 18 है, ये तो अपने को पता है, पर अपने को निकालना है। तो RC तो हमेशा पावर में ही चढ़ेगा। RC अगर है तो उसका तो 1 प्लस कर नहीं सकते, वो तो पावर में ही चढ़ेगा। तो व्हाट विल यू डू? E पावर RC, और ये जो E पावर RC है, इज इट फैक्टर या इंटरेस्ट रेट? E पावर RC इज व्हाट? फैक्टर माइनस 1 आ जाएगा। डू इट प्लीज। 0.1655, 0.1655 सेकेंड E पावर X, 0.1655 सेकेंड E पावर X 1 पॉइंट, वो हमने अप्रॉक्स लिया था ना, 16.55 थोड़ी था, वो तो और था एग्जैक्ट, ठीक है। तो 0.1655 सेकेंड E पावर X, ये आ गया 1.18 टाइप्स, और -1 किए तो आ गया ना 18%, ठीक है। तो RC को अगर इफेक्टिव करना है तो आपको ये करना है, और अगर RE को कंटिन्यूस करना है तो करना पड़ेगा ln 1 प्लस RE, ln 1 प्लस RE। सर लॉग लेना पड़ेगा किसका? फैक्टर का। माने एक जनरल कॉमन स्टूडेंट को ln 1 प्लस RE अच्छा नहीं लगता है, उसको अच्छा क्या लगता है? लॉग लेना है फैक्टर का, माने बोलने में अच्छा लगता है। करना कैसा? वो फैक्टर का लॉग लेना है क्या? दैट्स इजी। देखो करना ln ब्रैकेट 1 प्लस RE, लगता है 4 बॉम्ब मार दिया, ठीक है। तो फैक्टर का ln लेना है, फैक्टर का ln। सो आई थिंक स्टूडेंट का क्वेश्चन, आई टेंड टू फॉरगेट किस में E पावर दैट -1 करना है, किस में ln करना है। अब इसका क्या जवाब दे? आई टेंड टू फॉरगेट। एक तो इसका जवाब ये है कि कंटिन्यूस रेट अगर है और उसको इफेक्टिव करना है, तो कंटिन्यूस का फैक्टर थोड़ी बन सकता है 1 प्लस R, वो तो E का पावर में रेज होगा। कंटिन्यूस और कोई तरह से मैथ्स होता ही नहीं है, इट हैज़ टू बी रेज टू द पावर, ठीक है। और इफेक्टिव जो है उसका क्या बनता है? फैक्टर, वो थोड़ी E का पावर में रेज होता है। तो अगर आपको याद है तरीका, यार E में रेज होता है एक ठो, और एक में फैक्टर का ln लेते हैं, तो हाउ कैन यू बिकम कन्फ्यूज्ड? यू नो किस में क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो कंटिन्यूस टू इफेक्टिव, इफेक्टिव टू कंटिन्यूस। लेट्स फिल इट अप प्लीज, लिख देना RE RC 15%, यहाँ पे 19%, यहाँ पे 20%। फिलअप कर लो तीनों अपने आप। स्मार्ट स्टूडेंट सीक्वेंशियली नहीं करेगा, वो फर्स्ट और थर्ड वाला पहले करेगा, क्योंकि फर्स्ट में एक रिदम बैठ गया, उसको खराब क्यों करे? थर्ड वाला साथ ही साथ एग्जॉस्ट करे। ठीक है, आ गया होगा मेरे ख्याल से। फर्स्ट वाला 1.15 का ln, यस 13 पॉइंट
97। लास्ट वाला 1.2 का एल एन 18.23, 18.23%। और बीच वाला तो कंटिन्यूस है, तो सब वो तो ई में रेज होगा, यानी कि आपको करना था 0.19 सेकेंड ई पावर एक्स, 0.19 सेकेंड ई पावर एक्स जो आया इक्वल टू -1। क्या आया? 20.92। ठीक है, एंड वेरी वेरी गुड। जो स्टूडेंट एकदम इंट्यूटिवली समझ पा रहे हैं कि सर क्या आंसर आया वो तो हम नहीं बता पा रहे, पर कमती या ज़्यादा तो मेरे को पता चल ही जा रहा है। कमती या ज़्यादा समझा? कंटिन्यूस रेट कम आएगा, ठीक है, वो कम होते हुए भी ज़्यादा का इफेक्ट दे देगा, और कंटिन्यूस से इफेक्टिव निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, बिकॉज कंटिन्यूस रेट ये है तो उसका इफेक्टिव क्या है? ज़्यादा। ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं हो जाए कि सर कंटिन्यूस तो ज़्यादा ही आएगा, कंटिन्यूस का इफेक्ट ज़्यादा आएगा, यानी कंटिन्यूस का इफेक्टिव ज़्यादा आएगा। ठीक है ना? तो एक सेकंड उसका क्वेश्चन पे जाएं। वो क्या पूछ रहा था कि 18% सुनना पर एनम है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर सुन लो 18% पर एनम है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, आपको बताना है कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट क्या है। क्वेश्चन इज 18% है पर एनम है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सबसे मेन है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, जो कंपाउंडेड सेमी एनुअली के हिसाब से चलेगा उसका राइट हो जाएगा। आपको बताना है व्हाट इज द कंटिन्यूस रेट फॉर द ईयर। ठीक है, तो इन दैट केस एक तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा और आपसे पूछता हूँ। मेरा तो हैबिट है एज सुन एज आई लिसन कंपाउंडेड सेमी एनुअली आई डिवाइड बाई 2। एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, आई ऑलवेज यू टू डू दिस कि फर्स्ट फॉलो योर गट फीलिंग। कंपाउंडेड सेमी एनुअली सुनते ही डिवाइड बाई 2। दिस 9% इज इट इफेक्टिव रेट? यस, इफेक्टिव रेट फॉर द ईयर या 6 month? 6 month. This is also a very great asset of understanding कि 9% is effective for 6 months. And if it is effective, sir, you have already taught us how to convert effective into continuous. What? ln 1.09. ln 1.09 है ना? क्या आ रहा है? 1.09 का ln, 1.09 का ln परसेंटेज बोलना प्लीज इंटू 100 करके 8.617। ठीक है, इतना लेते हैं 8.617। Is it continuous rate for the year या for 6 month? For 6 month. And how do you come to the year? Into 2. Because continuous के साथ याद है सब allowed है। 8.617 into 2 17.23% approx। चलो, any other way of solving it? Question है, if the interest rate offered by a bank is 18% per annum compounded semi-annually, another bank is trying to compete with that bank and wants to offer a continuous rate which is equivalent to the rate quoted by the first bank. So what continuous rate should the bank quote? The answer is 17.23. I am asking some other way of computing it. So this is our approx value. Approx? Why? 17.23. क्यों approx? ये अपने approx नहीं है कि accurate है? नहीं, नंबर ऑफ डेसिमल का बात कर रहे हो तो अप्रॉक्स है कि 2325 कुछ आ रहा होगा, बट वैसे तो एक्यूरेट ही है यार। कितना डेसिमल लिखेंगे अपने? हाँ नहीं वैसा कितने, नहीं दैट्स ओके। कितने डेसिमल अपने लिखते हैं एग्जाम में, लिखना तो है ही नहीं, खैर वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। तो ऑप्शंस अगर बहुत पास होते हैं तो अपने ज़्यादा डेसिमल यूज़ करते हैं, ऑप्शन दूर होते हैं तो कम से डेसिमल यूज़ करते हैं, तो वो अपने आप ही स्मार्टनेस आ जाता है। ठीक है ना? मैं बोल रहा था कोई और तरीका इसको निकालने का। यस, ही सेइंग, बोलो। Yeah, just stop. So he's saying that, sir, let's do something. Let's calculate EAY, effective annual rate. बाकी I've stopped him for a moment. आप लोगों में से कोई 18% per annum compounded semi annually है, तो what is the effective annual rate? या 1 point क्या 09 स्क्वायर -1। तुम लोग सबसे मेन कहाँ अटक रहा बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, बिकॉज इतना प्रैक्टिस नहीं हुआ टाइम वैल्यू मनी का। तुम लोग वो चीज़ तुम लोग के इंस्टिंक्टिवली आ रहा ही नहीं है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली सुनते ही डिवाइड बाई 2। यू लिसन टू इट इन अ हैफर्ड मैनर एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कॉन्क्रीटली व्हाट इज टू बी डन। ओके, आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट एज सुन एज यू लिसन कंपाउंडेड सेमी एनुअली डिवाइड बाई 2, कंपाउंडेड क्वार्टरली डिवाइड बाई 4, एंड देन व्हाट यू गेट, उससे काम आगे बढ़ाना है। इफ यू गेट दैट इंस्टिंक्ट यू विल नॉट गेट स्टक अप। ओके, उधर एक बार इनिशियल फ्रिक्शन है, दूर हो जाएगा। फॉलो योर इंस्टिंक्ट, कंपाउंडेड सेमी एनुअली डिवाइड बाई 2, देन थिंक फर्दर।
क्या निकालना हो तो बात का बात है, पहले तो डिवाइड बाई 2 कर दे, बिकॉज ये बात तो पक्का है सम विदाउट डिवाइड बाई 2 आने वाला नहीं है। ओके तो इन दैट केस 9 आया। अब तुम सोचते सर 9% 6 महीने का है और साल का पूछ रहे हैं, तो 1.09 स्क्वायर माइनस 1, 1.09 स्क्वायर माइनस 1 18.81, 18.81, ठीक है। 18.81 जब अपने बोलते हैं तो और एक इंस्टिंक्ट, आई डोंट डू 1.09 इंटू 1.09 इन माई माइंड, आई अंडरस्टैंड कि वैसे क्या है 9 प्लस 9% ऑफ 9, 9 प्लस 9 18 और 9% ऑफ 9 इज 0.81, तब 18.81 बोलते हैं ना। जैसे 8% 6 महीने का है तो साल का क्या है 8% 6 महीने का है, साल का इफेक्टिव 16.64, 8 8 16 तो है ही, और 8% ऑफ 8 इज व्हाट 0.64। कम से कम स्क्वायर में तो ये टैकल्ड है ही, पावर 4 में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, व्हाटएवर। तो ही सेइंग दैट इफेक्टिव एनुअल निकाल लीजिए 18.81। अब तो समझ ही गया, एक मिनट से रुको, इसके बाद कंटिन्यूअस कैसे निकाले, क्वेश्चन क्या था याद है ना, 18% per annum compounded semi-annually, what is the continuous annual rate? ln 1.1881, try that Kelsey, 1.1881 का ln, 1.1881 का ln 1723, वही जो है 17.23%। तो दो तरह से निकाल सकते थे, एक सर सबसे पहले तो डिवाइड बाई 2 करना ही पड़ेगा, करने के बाद जो है या तो उसको कंटिन्यूअस करके मल्टीप्लाइड बाई 2 और या फिर उसी को इफेक्टिव करके कंटिन्यूअस। तो डिवाइड बाई 2 तो करना ही है, अब तुम्हारा मन, या तो वहीं पे कंटिन्यूअस कर दो और फिर आ जाओ साल में, या फिर वहां से पहले साल में इफेक्टिव आ जाओ फिर वहां से कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देयर आर 2 वेज ऑफ अप्रोचिंग इट, ठीक है। बट ये एग्जाम्पल मैं लिखाऊंगा आफ्टर राइटिंग द थर्ड, क्या पॉइंट चल रहा है कि बुलेट पॉइंट चल रहा है ना, हाँ, पॉइंट नंबर 4, point number 4, because powers are added, because powers are added, comma, continuous rate is mathematically most easier to deal with. Continuous rate is mathematically most easier to deal with. Full stop. For instance, the enjoyment as shown below is possible. The enjoyment as shown below is possible only under continuous compounding. The enjoyment as shown below is possible only under continuous compounding. Only under continuous compounding. Dash. यहाँ लिख देते हैं 18% per annum compounded continuously. 18% per annum compounded continuously. So, yeah, 6 month, 3 month, 1 month, 5 years का रेट बताना है, ठीक है ना। तो 6 month का रेट इज व्हाट 9, 3 month का रेट इज व्हाट 4.5, 1 month का रेट इज व्हाट 1.5, 5 years का रेट इज व्हाट 90। आई एम प्रिज्यूमिंग यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज बीइंग डन। 18/2 9, 18/4 4.5, 18/12 1.5, 18 इंटू 5 90। ये ऑल कंटिन्यूस है, ये सारा रेट्स क्या निकला, इफेक्टिव या कंटिन्यूस? कंटिन्यूस, ऑब्वियसली ये सब कंटिन्यूस है, ये सब कंटिन्यूस है। ये था कंटिन्यूस साल का, ये है कंटिन्यूस 6 महीने का, ये कंटिन्यूस 4.5 3 महीने का, ये मंथ का, और ये 5 साल का, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन, इफ यू डिड नॉट फील द एंजॉयमेंट अबव, बिकॉज काफी जन फील नहीं कर पाए, इफ यू डिड नॉट फील द एंजॉयमेंट अबव,
If you did not feel the enjoyment above, comma, look at the pain below. Look at the pain below, because pain से compare करेंगे तो पता चलेगा हाँ यार कितना ठीक था. Look at the pain below. फिर से करते हैं. 18% per annum compounded annually. 18% per annum compounded annually. अब 6 month का, 3 month का, 1 month का, 5 years का. यस 6 month का आंसर. साल का रेट पता है मेरे को 6 month का निकालना है, पर वो कंपाउंडेड एनुअली है, बाई 2 नहीं कर पाएंगे. 1.18 पावर हाफ माइनस 1, बिकॉज 1 रुपया 1 साल बाद 1.18 बनेगा, तो 6 महीने बाद क्या होगा, हाफ. यहाँ पे समझ ही गए अब तो. क्या 1.18 पावर 1/4 माइनस 1. यहाँ पे 1.18 टू द पावर 1/12 माइनस 1, और यहाँ पे 1.18 टू द पावर 5 माइनस 1. कितना प्रॉब्लम है बाकी सारे रेट्स के साथ. ठीक है, कंटिन्यूअस के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पॉइंट नंबर 5. If share price goes up, if share price goes up from 500, if share price goes up from 500 to 590, if share price goes up from 500 to 590 in a year's time, in a year's time, in a year's time, comma, what is the effective return and continuous return? What is the effective return and continuous return? तो सॉल्यूशन लिखना मत, डिस्कस कर रहे हैं. इफेक्टिव रिटर्न जो मैंने पूछा वो तो मजाक कर रहा हूँ. 500 से 590 एक शेयर का दाम हो गया, एंड आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट द रिटर्न. इट इज लाइक डिसरिस्पेक्टिंग योर ईगो एंड इंटेलेक्ट. 500 से 590 हो गया, व्हाट्स द रिटर्न? 90 बाई 500 इंटू 100. करेक्ट है. बट द पर्पस ऑफ सेइंग दिस इज दैट इसी चीज का हैबिट बनाओ. 590 बाई 500 माइनस 1, डिफरेंस कुछ नहीं है. 500 से 590 हुआ. अपना जनरली हैबिट क्या है? चेंज माने 90 डिवाइड बाई 500. और जो गलत नहीं है, सही है पूरा, पर मैं बोल रहा हूँ ट्राई टू ग्रेजुएट फ्रॉम दिस एंड मेक द हैबिट. 590 बाई 500. व्हाट इज 590 बाई 500? नॉट द अमाउंट, बट व्हाट इज इट? फैक्टर. 590 बाई 500 इज 1 प्लस आर. ओके, 1.18 आ रहा है. क्या आ रहा है? 1.18 और माइनस 1. इससे क्या फायदा होगा? दिख जाएगा सिलेबस में. आप वो करें ना, बाद वाला बाई पहले वाला, फिर माइनस 1. इट मैटर्स अ लॉट, इट हेल्प्स अ लॉट. और अगर कंटिन्यूस निकाल रहे हैं तो कोई स्टूडेंट करेगा पहले 590 माइनस 500 बाई 500 इंटू 100. मैंने सोचो एग्जाम पेपर चल रहा है, क्वेश्चन है, और वो पेंसिल से बगल में लिख रहा है 590 माइनस 500 बाई 500. सॉरी भूल गया, वो ये भी तो कर रहा है इंटू 100. यू लुकिंग एट द लेवल दैट ही इज ऑपरेटिंग. तो अगर ये लिखना पड़ेगा तो कितना कितना चीज क्वेश्चन पेपर में साइड में लिखना पड़ेगा, बिकॉज आंसर शीट तो है नहीं. देर इज नो शीट इन विच यू कैन राइट एनीथिंग. देयर इज नो स्पेस एट ऑल. इन बिटवीन गंदा कर करके तुम करते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होगे वहां बैठे हुए. बढ़िया वाला रबर लेके जाना पड़ेगा. ठीक है. इसके बजाय हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आप 590 बाई 500 कर दो. ये तो 18% वर्बली आ रहा था, राउंड फिगर था, वरना 590 बाई 500 दिख जाए कैलसी में. वो 1 हटा के रिटर्न तो ऐसे दिख जाता है. क्या उसको -1 करके इंटू 100 करना पड़ता है? नहीं. एज सुन एज यू सी 1 पॉइंट कुछ समझ में तो आ गया. ऑल्दो मेरे को क्लास में लिखाते हैं, लिखाना पड़ेगा 590 बाई 500 माइनस 1 द होल इंटू 100. दिस अ डिफरेंस इन द क्लास नोट्स वर्सेज ऑपरेशन, द वॉक द टॉक. और सेकेंड बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस रिटर्न निकालने के लिए तो करना चाहिए 590 बाई 500 का ln.
590 by 500 का ln. How stupid it would be कि first of all we calculate the effective return, then return का factor निकालेंगे और फिर ln करेंगे. तो यार factor तो निकाल लिया तुम पहले. तुम 18% निकालेगा, फिर बोलेगा ठीक है सर, फिर आपका फॉर्मूला था 1.18, फिर उसका ln. समझ गया? तो 590 by 500 का ln. मेरा मकसद था ये बताना कि कंटिन्यूस रिटर्न स्टॉक मार्केट में कैसे निकलता है. बाद का प्राइस डिवाइड बाय पहले का प्राइस, उसका ln, उसका ln. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट. नथिंग हाई फाई, इट वाज अ जनरल स्टफ कि हाँ ठीक है, दिस इज हाउ वी शुड ऑपरेट. तो इन दैट केस लिखे प्लीज अपने इफेक्टिव रिटर्न इक्वल टू P1 बाय P0 -1. ठीक है? बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए P1 बाय P0 क्या है. दिस इज 1 प्लस RE. दैट्स द कैच. बाद का प्राइस बाय पहले का प्राइस इज व्हाट? 1 प्लस RE. ओके, सो दिस इज क्या था? 590 बाय व्हाट? 500 -1 इक्वल टू 18%. ठीक है? नेक्स्ट लाइन, कंटिन्यूअस रिटर्न इक्वल टू 590 बाय 500, उसका क्या? ln. ओके, ln ऑफ 590 बाय 500. व्हाट इज इट? 16.55%. ठीक है, अप्रॉक्स 16.55%. 16.55%. ठीक है? Things understood once always remain somewhere in the subconscious. Do not overstress yourself regarding the building block classes कि सर शॉर्ट सेलिंग हो, ये हो, वो हो, तो मैं भूलते जा रहा हूँ. ठीक है? तो एक बार बस वो सीड सो कर दिया गया, उसके बाद तो जब प्रॉपरली LOS में आएगा तब तो वहाँ पे छोड़ेंगे थोड़ी. Then we open the book, then we do multiple choice question, look at the author's language, this and that we practice. So do not overstress yourself this way कि सर बिल्डिंग ब्लॉक का स्टफ जो है वो याद नहीं आ रहा है. याद आने जैसे क्लास में हुआ नहीं है, बिकॉज उसके लिए थोड़ा स्पेंड करना पड़ता है टाइम इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ एंड देन यू प्रैक्टिस द सेम टाइम एट होम विथ न्यू क्वेश्चंस एंड देन इट गेट्स रिटेन्ड फॉर एवर. समझ गया? तो इट्स कम्युनिकेटेड. हैव कॉन्फिडेंस इन योर इंटेलेक्ट. हाँ, एक बार समझ में आ गया था उस समय अपने आप रिकलेक्ट हो जाएगा. ठीक है? तो आज अपने 2 टॉपिक किए. फर्स्ट वाला टॉपिक कौन सा था अपना? परपेचुइटी एंड परपेचुअल ग्रोथ, A/I, C1/I-G. और उसके अलावा सेकेंड टॉपिक किए कौन सा? कंटिन्यूस कंपाउंडिंग. ठीक है? तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी एट माय एंड. बीच बीच में हो सकता है 1-2 क्लास अब थोड़ा सा मार्केट्स का दिखाएंगे, मार्केट्स का, मतलब स्टॉक मार्केट जो चलता है ना उसका, बिकॉज दैट ऑल्सो इज रिक्वायर्ड कहीं कहीं व्हेन वी स्टडी थियोरेटिकल स्टफ कि यू आर गेटिंग द इंटेलेक्ट ऑफ हाउ द मार्केट्स आर मूविंग. ठीक है? तो इट वुड बी नंबर 1 मोर इंटरेस्टिंग एंड नंबर 2 मोर रेलिवेंट. ठीक है? ऑल्दो दीज वेर ऑल्सो गुड बिल्डिंग ब्लॉक्स मेड अप. ठीक है ना? तो दिस इज वेयर वी एंड टुडे.